क्रिटिक मुझे 2 स्टार देता है, 3 स्टार देता है, माइनस देता है, जो भी बोलता है कि स्टोरी नहीं वो नहीं, फैंस जाके वो पिक्चर को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हिट बना देता है। I think it's a perfect birthday gift from Arbaz for you. No, I expected a lot more actually. वो एक था टाइगर का रिकॉर्ड तोड़ दे, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। बट 3 दिन में हो गया वो। As a director, you made a debut somewhere. डेब्यू के लिए सिर्फ ताली बना। बिल्कुल, बिल्कुल। एक सवाल आता है क्यों चौबे जी? चौबे जी सर ब्यूटीफुल सर। चुलबुल पांडे इज जीरो विदाउट हिज पैराफर्नेलिया। जिस दिन एक ऐसी पिक्चर आए कि उनको ऐसा लगता है कि देखने लायक नहीं है पिक्चर, थ्रू द प्रोमोज में ही वो कतई नहीं जाएंगे। और ये मेरे करियर में एक बार नहीं 2 बार हो चुका है। Who's really Asma? That how beautiful is she? मिस्ट्री इसके बेटा बाप की सेटिंग कर रहा है, इससे बेटर मोमेंट हो ही नहीं सकता सर। Well, we have the team of Dabang, director Arbaz Khan, writer Dilip Shukla and Salman Khan. The film is doing wonderfully at the box office, but more importantly, people are liking it. There's a tremendous repeat value in the film, which is, I think, a very, very positive aspect. Wonderful to have you on board, Rangama, Salman, Arbaz and Dilip ji. I think it's a perfect birthday gift from Arbaz for you. No, I expected a lot more actually. Maybe, I think, picture चलने वाली है अभी. No, I expected कि ये मुझे ऐसा लगा कि फर्स्ट डे का एक था टाइगर का रिकॉर्ड तोड़ दे, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। बल्कि एक था टाइगर 32 था, इन्होंने मुझे कुछ 21 नीचे ले आया पिछली पेज। तो ये कोई बर्थडे गिफ्ट नेक्स्ट नहीं। बट 3 दिन में हो गया वो। हाँ नहीं, अरे वो मुझे नहीं। Till Mattu you have a free run. So Mattu does well, and after Mattu also we'll have a free run inshallah. But even I feel that, yeah. But till the time I don't accept this gift, till the time it doesn't cross at least Tiger, yeah. टाइगर से 3-4 तो ऊपर ही जाना चाहिए यार। बिल्कुल नहीं, in fact Arbaz debate is that will it just break the box office record of 3 Idiots, that is 202 crores. What do you have to say? I think it has the potential for sure. The early trends are very encouraging. That's very important. कि film how is it collecting regularly? So after the 5th day, we will know. It's been very good up till now. So we've got a nice appreciation, and we've got a good week, and we've got no opposition. So all these things will also help in contributing to this. To the collections of the film. And India-Pakistan match, I believe you guys lost out on 2-3 crores yesterday. Must be, but maybe some other film would have lost out a lot more. So, being Dabang, being a Salman Khan starrer. Cricket is a huge thing, especially India and Pakistan playing cricket is even huger after such a long time. And we are happy that people went and watched cricket because this is a superb game, to watch. And if they've not seen it yesterday, they'll see it tomorrow or day after, whatever. It's not that there's a choice between cricket or watching Dabang. ये choice तो है नहीं ना। अब क्रिकेट देख लिया घर पे बैठकर या स्टेडियम में जाकर, अब जब मूड आएगा पिक्चर देखने वो भी देख लेंगे। तो जिस दिन का ये करेक्शन 3-4 करोड़ का जो इफेक्ट पड़ा हो, वो नेक्स्ट डे कवर अप हो जाएगा या उसके अगले दिन कवर अप हो जाएगा। मैच का तो एक ही स्लॉट है ना। हमारी फिल्म तो थिएटरों में लगी हुई है, तो लोग एक शो मिस कर जाएंगे। And you have the weekend now. हाँ, एक शो मिस कर जाएंगे तो दूसरे शो में आ जाएंगे। वो मैच आप रिपीट में नहीं देख सकते, देखना पसंद भी नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि आप रिपीट दबंग कर सकते। तो वी आर हैप्पी दैट पीपल हैव गॉन एंड वॉच द मैच। Okay, I saw the film first day first show in my hometown in Aligarh in UP. The dialogues are very punchy. Somewhere the repeat value factor. चौबे जी और तिवारी जी को जिस तरीके से आपने हाईलाइट किया है, और जब वो दीपक डोबरिया सलमान को बोल रहे हैं, आई थिंक चौबे जी बोलते हैं कि दैट अपनी पर्सनैलिटी को देखकर कुछ ज़्यादा नहीं बोल गया। पंचेस हैं उसके अंदर। कुछ आप बताना चाहेंगे एज अ राइटर, हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस फिल्म फॉर यू? There are a lot of things in the film that have been very spontaneously added. Because of the scene, के सीन में देख के लगता है कि यार ये सीन में हल्का सा हो सकता है। तो those things have come in, some those contributions are Salman's with the writer. कभी-कभी spontaneously आता है। होता क्या है कि चुलबुल के आसपास जो लोग होते हैं ना, जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो खुद इतना सामने, हाँ, मतलब वो लोग खुद अभी उस कैरेक्टर में इतने ज़्यादा बैठ चुके हैं कि जब कोई सीन हो रहा होता है तो कुछ भी बोल देते हैं, अच्छा लगता है, हम लोग रखते हैं कुछ। It's become like आपस में कुछ कर ले। चुलबुल पांडे पर्सनैलिटी, वो आखिर में जिस तरीके से बोलते हैं कि दैट बच्चा को इतना टाइम लगता है, कुछ जल्दी नहीं हो सकता। इट कैन हैपन विद चुलबुल पांडे, इट कैन हैपन दैट इट कैन हैपन फास्ट एज वेल। जैसे कि छोटी-छोटी चीज़ें इम्प्रोवाइजेशन, जैसे वो तिवारी जी आके बोला मृदंग में तड़तड़ा के वो, हाँ, तड़तड़ा के, हाँ, वो फर्स्ट में था
अब यहाँ पे ब्लैक रोज कर दें, रेड रोज कर दें, अब इट इज हिज इम्प्रोवाइजेशन, ही इज कम अप विद दिस थॉट के ब्लैक रोज कर दे और फिर या तो वही पुराना वही पुराना That scene was like everybody who was involved kind in terms of a performance. एक सवाल आता है क्यों चौबे जी सर ब्यूटीफुल सर इवन जो खासते हैं जो आप कह रहे हैं कि हम तो गाली भी नहीं बकते हैं। हम एक अहिंसावादी थानेदार हैं। गोली तो छोड़िए, हम किसी को गाली तक नहीं बकते। वो सिद्दीकी साहब, वो जो नया लॉर्ड, वो जो नया लॉर्ड जो है, खांसने में भी एक पंच है। शर्मा जी कानपुर से हैं। मतलब ऐसा हो गया कि कानपुर से भी जो लोग हैं ना, वो लालगंज वालों से ऐसे मर्ज हो, ऐसा लगता है आपस में फैमिली को जानते हैं, एक फैमिली से। They are very nice. That whole camaraderie between that team was very good. एक्चुअली क्या चुलबुल पांडे की जो पर्सनालिटी है और ऑफ स्क्रीन ऑल्सो जो उनका जो आपस में जो था ना, उनका बहुत बढ़िया केमिस्ट्री था। इसमें कि ये नहीं कि तिवारी जी लाइन बोल रहे हैं या चौबे जी लाइन बोल रहे हैं कि शर्मा जी को लाइन नहीं मिली, वो सब इतने खुश थे जो सुपर। चुलबुल पांडे इज जीरो विदाउट हिज पैराफर्नेलिया। आपने बोला कि दैट ही इज अ टीम प्लेयर। Okay, Arbaz, now as a director you made a debut and many would say that जिस तरीके का आपका debut, I think it's fantastic because somewhere डेब्यू के लिए सिर्फ ताली बना। बिल्कुल and somewhere because you know a few people had this thing that first part में कहीं ना कहीं मक्खी and विनोद खन्ना जी's role was a bit prolonged in a way and somewhere एक fatigue factor आता है। लेकिन यहाँ पर आपने you are playing मक्खी yourself, लेकिन कहीं पर भी आप अपने से मोहब्बत करके आपने अपने सीन को बढ़ाया नहीं है। You've kept Salman, people came to watch Salman and the entire thing is there, which is I think commendable as a director. I think that was consciously done. लो पॉइंट्स नहीं है फिल्म में। उसमें राइटर के साथ भी बैठ के ये डिस्कस हुआ था। मैं बोला यार बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोडक्शन भी है, डायरेक्शन भी है, फिर एक्टिंग भी है। मतलब ऐसा कुछ निकालो कैरेक्टर जो ख़राब भी ना हो और मैं अपना काम भी कम करूँ। तो थोड़ा सा इन्होंने रेजिस्ट भी किया कि ऐसा क्यों कर रहे हो, मक्खी को मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। मैंने बोला नहीं, आप एक काम करो, मक्खी को छोटा रखो बट अच्छा रखो। एंड देन वी वर्कड इट आउट एंड डिस्कस्ड इट एंड ऑल दैट स्टफ एंड वी केप्ट इट अ लिटिल लेस active in the entire this thing, but he's still there as a character in the whole thing, which has worked. I think that element has worked in the film. You know, people would want to see the picture of Asma actually. Who's really Asma? That how beautiful is she? Asma is I think that's a fantastic moment. Camaraderie between you and Vinod. कि बाप के बेटा बाप की सेटिंग कर रहा है, इससे बेटर मोमेंट हो ही नहीं सकता सर के। और माँ वो सपोर्ट करी जो ऊपर, माँ सपोर्ट कर रही जो कमाल की फैमिली है। Now this is the spontaneity that came on the set. This scene was already there. That little adding of कि यार इसको एक फ़ोन कॉल भी ऐड कर देते सीन के अंदर, इसमें एक फादर के साथ मस्ती भी करते। This is all Salman's improvisation and contribution to adding to the scenes, which is fantastic because these are the things that have really added to the film's character and the moments. Salman, we read a public opinion at a multiplex as well as a single screen in Mumbai. The kind of response that we've got both at the multiplex as well as single screens, personally मैंने कभी नहीं देखा है जिस तरीके से लोग दीवानों के तरीके से कर रहे हैं, that we are addicted and to Salman. At the same time कहीं ना कहीं repeat value tremendous है, 300 करोड़, all these things are there. कुछ critics का कहना ये है कि that कहीं ना कहीं फिल्म जो है वो उसमें प्लॉट की कमी है एंड कहीं ना कहीं वो जैसे दबंग थी वैसे ही दबंग 2 ही है, ऑलमोस्ट रेप्लिका है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पिक्चर अच्छी है या बुरी है, क्या कौन डिसाइड करता है? पिक्चर अच्छी होना या बुरी होना, वो पिक्चर जब तक थिएटर में लास्ट डे तक है, जो लास्ट कलेक्शन है वो डिसाइड करता है। बुरी चीज़ देखने आप जाओगे? नहीं जाओगे। बस तो फिर ये एंड ऑफ डिस्कशन ये है कि फर्स्ट जो थी ऑडियंस रिएक्शन, अब मैं 4 क्रिटिक्स के हिसाब से जाऊं जो कि मुझे लगता है कि एलिनेटेड है, तो टोटली एलिनेटेड है, इस फिल्म इंडस्ट्री से ह्यूजली एलिनेटेड है। क्योंकि एक क्रिटिक कुछ बोलता है, क्रिटिक मुझे 2 स्टार देता है, 3 स्टार देता है, माइनस देता है, जो भी बोलता है कि स्टोरी नहीं है वो है, और फैंस जाके वो पिक्चर को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हिट बना देता है ना। अब मैं किसको फॉलो करूं? इन 4 लोगों को फॉलो करूं या फिर एक हिंदुस्तान की आवाम को मैं फॉलो करूं, जिससे मेरी एक थिंकिंग मिलती है, जो थिंकिंग से चल रहे हैं कि ये इनको अच्छा लगेगा क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अपने आप को वही समझता हूँ। मैं अपने आप को कोई स्टार वार की पोजीशन देता नहीं मुझे, और एज अ फिल्म गोअर
मुझे इसी टाइम की पिक्चर अच्छी लगती है, अब उस वक्त लगती थी, आज लगती है, और दावे के साथ कह सकता हूँ मैं आपको कि ये 20 साल के बाद भी लगेगी मुझे। तो ये आई वांट टू फॉलो दोज काइंड ऑफ फिल्म्स एंड आई वांट टू फॉलो लीड द मासेस, आई वांट लीड द पीपल, जो कि ये नहीं कि ऑफिस या ट्रायल में या प्रेस शो में जाके एक पिक्चर देख ली और फिर अपनी इंटरप्रिटेशन दी कि अगर मैं होता तो मैं ये लिख लेता। तो आप ज़रूर लिखिए यार, आप लिखिए फिल्म, जाइए, बहुत सारी पिक्चरें बनती हैं, बहुत सारे ऑफिसेज हैं। यही है ना कि अगर आप एक फ़िल्म के ऊपर कमेंट दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका एक ये कि हम इससे बेटर लिख सकते, तो आप लिखते क्यों नहीं हैं? हमारे पास आ जाए, अगर आपके पास कोई ऐसी अच्छी फिल्म है क्रिटिक्स के पास, हमारे पास आ जाए, हम करेंगे आपकी पिक्चर यार। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि करने को अच्छी स्क्रिप्ट मर रहे हैं, लेकिन कोई आता ही नहीं। एक मिस्टर खालिद मोहम्मद ने दो पिक्चर बनाई जो कि क्रिटिक्स है, उसके बाद उन्होंने नहीं बनाई। तो ऐसा क्यों नहीं आता? अगर कमेंट दे दें कि 2 स्टार 1 स्टार, क्यों इनके सबसे ये 2 स्टार, अगर हम होते तो हम इसमें ये डालते और इस फिल्म को ऐसा बनाते, और ये फिल्म बनती 500 करोड़ की फिल्म। तो अगर ये सोच है तो फिर आपके पास ज़रूर कोई स्क्रिप्ट होंगी, तो आपके सुनाए हम। आप मानते हो कि कोई हीरो कोई पिक्चर चला सकता है? और ऐसा होता तो ये नहीं कि कोई फैंस कोई एकदम मुझसे मोहब्बत करते हैं या कुछ है। फैंस जिस दिन एक ऐसी पिक्चर आए कि नहीं कि उनको ऐसा लगता है कि देखने लायक नहीं है पिक्चर, थ्रू द प्रोमोज में ही वो कतई नहीं जाएंगे। और ये मेरे करियर में एक बार नहीं 2 बार हो चुका है। कौन कौन सी फिल्में आप? मैं आपको जैसे कि हाल ही में मेरा मिसेस खन्ना विच वी प्रोड्यूस सर, गॉड टू सी ग्रेट हो, और उसके पहले जो निश्चय विषय की जो पूरा प्लॉट था, दे डोंट वांट टू सी दोस फिल्म्स। वो तो वही है। सो इट्स नॉट, अगर ऐसी कोई पिक्चर आ जाए जिसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई मज़ा नहीं है, कोई धरती नहीं है, कोई प्लॉट नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कोई ह्यूमर कॉमेडी एक्शन जो उनको भाई वो सब नहीं है, जो चीज़ें उनको देखना है, क्योंकि पैसे तो इवेंचुअली उनके, टाइम उनका है।